Hello everyone, my name is Suhail Firdaus and I am currently a second year MBBS student. This video is on, this is the third lecture of the biochemistry series on enzymes that I started back in October, I think, yeah. And sorry for the delay, this is only the third lecture yet. Alright, I think I started maybe like 2 months ago and this is only the third lecture. Sorry, I got lazy. I'm very sorry. And so today I will be discussing the theories of mechanism of enzyme substrate complex formation, where I will discuss two important theories, Fisher's theory and Koch-Lenz induced theory. Okay, so let's start. So the first theory is Fisher's template theory, and it has got another name by which most of us must have heard of it, which is the lock and key model. Alright, lock and key model. Okay, so what does this theory say? It's very simple. It says that the 3D structure of the active site of an enzyme is rigid, pre-shaped and complementary to the shape of the substrate. क्या मतलब इसका? मतलब 3D structure it basically means the shape of the active site. एंजाइम में एक एक्टिव साइट होता है ना, एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट पे the substrate of an enzyme binds. Okay, so the shape or the 3D structure of the active site of an enzyme is rigid, pre-shaped and complementary to the shape of the substrate. I repeat, the shape is rigid, pre-shaped and complementary to the shape of the substrate. मतलब एक्टिव साइट का शेप जो होता है ना, वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता. ठीक है, इस मॉडल के हिसाब से. ठीक है, मतलब वो कभी चेंज नहीं होता एक्टिव साइट का शेप. ओके, सो जस्ट फ्रॉम द नेम यू कैन गेस हाउ, मतलब इजी है ना गेस करना कैसा हुआ लॉक एंड की मॉडल. मतलब एंजाइम को समझो एक ताला होता है एंड enzyme is like a key and our substrate is like what? Our substrate is like, sorry, our enzyme is like a lock and our substrate is like a key. Wait a sec. So I've got a lock and I've got a key. Okay, so our enzyme is like this lock only and our substrate is like this key. Okay, so there must be complementarity between them, means the active site of our enzyme inside of this, okay, it should be complementary to the shape of the substrate. तभी ना खोलेगा, तभी ना जाके हमारा ताला खोलेगा. खुल गया हाँ. मतलब बाइंडिंग होने के लिए एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है उसका शेप इट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटरी टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट. ठीक है, बस इतना ही. ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम. एंजाइम, this is the active site. Okay, this ये active site है, this is our substrate and here they bind, forming the enzyme substrate complex formation. Very easy. So the pros and cons, this model it holds good for many enzymes, बहुत सारे enzymes में it is applicable. ठीक है, then what's the con? The con is that ऐसे बहुत सारे और भी enzymes होते हैं जिसमें ये it does not explain the flexibility. मतलब बहुत सारे एंजाइम्स में ऐसे नहीं होते हैं, मतलब एक्टिव साइट इज़ नॉट रिजिड. ओके, बहुत सारे एंजाइम्स में द एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल. क्या मतलब? आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वाइल. स्पेशली एलोस्टेरिक एंजाइम्स. एलोस्टेरिक एंजाइम्स ये अभी मैं बता रहा हूँ, सुन लो अच्छे से. ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स में क्या होता है? दे हैव टू बाइंडिंग साइट्स. हाउ मेनी? टू. ओके, एक होता है एक्टिव साइट, ठीक है, वो सब में होता है. एंड द सेकेंड साइट इज द एलोस्टेरिक साइट. उसमें क्या बाइंड होता है? सबस्ट्रेट बाइंड होता है. नहीं, सबस्ट्रेट नहीं, इट्स एन एक्टिवेटर और एन इनहिबिटर. ठीक है, व्हाट्स एन एक्टिवेटर, व्हाट्स एन इनहिबिटर? एक्टिवेटर वो एफिनिटी इंक्रीज करता है. एफिनिटी किसके बीच में? मतलब इधर एक एक्टिव साइट है ना, पीछे की तरफ इसको मान लो, इधर मान लो एक और साइट है, इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट. ठीक है, तो ये जो एलोस्टेरिक साइट में जो बाइंड होगा, से एन एक्टिवेटर बाइंड्स, उससे क्या होगा? एफिनिटी बिटवीन आवर सबस्ट्रेट एंड आवर एक्टिव साइट विल इंक्रीज एंड द एंजाइम विल इंक्रीज. ठीक है, उससे रिएक्शन जल्दी होगा. ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम विल इंक्रीज. मान लो अगर इनहिबिटर आगे बाइंड किया, ठीक है, इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे, तब क्या होगा? तब ये जो एफिनिटी है ना, इट विल डिक्रीज. उससे क्या होगा? बाइंडिंग नहीं होगा अच्छे से, उससे फिर रिएक्शन स्लो हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो बहुत सारे ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं लाइक एलोस्टेरिक एंजाइम्स, जहाँ पे क्या होता है
एलोस्टेरिक साइड पे जब चीज़ें बाइंड होंगे ना, उससे एक्टिव साइड भी इन्फ्लुएंस होता है, उसका शेप इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे एलोस्टेरिक साइड पे चीज़ें बाइंड हो रहे हैं वैसे ही उसका जो एक्टिव साइड है इट विल गेट इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। मतलब वो फ्लेक्सिबल रहता है, चेंज हो रहा है। लेकिन इस मॉडल के हिसाब से तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, मतलब फिक्स्ड होता है, लेकिन ये तो बोल रहा है चेंज होता है शेप, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं काम कर रही, ठीक है। तो इसीलिए एक और थ्योरी है विच इज़ कोशलैंड्स इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है। ये क्या कहता है, इट्स जस्ट द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट टर्म, उल्टा कर दो, सिंपल। व्हाट डज इट से? इट सेज दैट द एक्टिव साइड इज नॉट रिजिड, नॉट प्री शेप, नॉट कॉम्प्लीमेंटरी टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। उससे क्या होता है, मतलब क्या होता है, एक्टिव साइड इज नॉट फुल्ली एक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ द सबस्ट्रेट। व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब जो एक्टिव साइट होता है उसका जो शेप होता है इट्स वो फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता, प्री शेप नहीं होता, पहले से कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, ठीक है। एंड इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंटरी द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट इनिशियली व्हेन द सबस्ट्रेट इज नॉट अराउंड, ओके। तो मतलब क्या, ऐसे ही जाके तुरंत बाइंडिंग नहीं हो जाता इजीली, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, पहले हमें इसको एक्टिवेट या फुल्ली फंक्शनल करना होगा, ठीक है। क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ द सबस्ट्रेट इनिशियली क्या होता है, इट्स नॉट फुल्ली एक्टिव, ठीक है। तो होता कैसे, लेट्स सी। Initial interaction of the substrate with the enzyme means, what do I mean by initial interaction? It means initial approach of the substrate or initial superficial binding. धीरे धीरे जैसे सबस्ट्रेट आ रहा है, that initial superficial binding, उससे क्या होता है, it induces a conformational change in the enzyme, ठीक है। Conformational change means change in the shape, okay. So this produces a conformational change in the enzyme, and what does that do? It makes the active site fully functional, ठीक है। मतलब फुल्ली फंक्शनल होने के बाद अच्छे से बाइंडिंग होगा, मतलब एफिनिटी बढ़ जाता है फॉर द एक्टिव साइट टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट। उसके बाद इट बिकम्स फुल्ली फंक्शनल एंड देन इट बाइंड्स द सबस्ट्रेट, बाइंड्स टू द एक्टिव साइट एंड देन एंजाइम स्ट्रांगली बाइंड्स सबस्ट्रेट एंड देन द रिएक्शन इज कैरिड आउट, ओके, सिंपल। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेशन। एलोस्टेरिक एंजाइम्स में क्या होता है, देयर इज एन एलोस्टेरिक साइट एंड बाइंडिंग टू दैट साइट इन्फ्लुएंसेस द एक्टिव साइट। इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है ना। एंड दिस थ्योरी परफेक्टली एक्सप्लेन्स कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। सी दिस वन, एंजाइम का शेप, ये एक्टिव साइट का शेप देखो ऐसा है ना, एंड सबस्ट्रेट का शेप देखो सेम नहीं है ना, लेकिन फिर भी बाइंडिंग हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि एंजाइम का जो एक्टिव साइट का शेप है ना वो चेंज हो रहा है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको याद रखो, यहाँ पे सिर्फ एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप स्लाइटली बदल नहीं रहा है, मतलब ये तो बदल रहा है, इसके साथ और सबस्ट्रेट का भी शेप स्लाइटली चेंज होता है, ठीक है। मतलब दोनों को कंप्रोमाइज़ करना होता है। रिमेंबर इन लाइफ for compatibility and all those things you need to compromise, both people have to compromise, right? तो सोच लो वैसे ही। Then substrate strain theory, it's basically a continuation of Koshland's induced fit theory. So what does it say? It says, according to this theory, when a substrate binds to the active site of an enzyme, it brings about conformational changes in the enzymes. अभी बताया ना। Then next important क्या है, which in turn induces a strain on the substrate. Now this theory says कि जैसे this theory says that जैसे पास आ रहा है ना धीरे धीरे, उससे क्या होता है, एक्टिव साइट के कन्फर्मेशनल चेंज में स्लाइट चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, ये सबस्ट्रेट पे स्ट्रेन आता है ना। यू माइट बी वंडरिंग कि शेप तो मैंने ज़्यादा फोकस इस पे किया ना, इसका चेंज हो रहा है ज़्यादा फोकस, तो इस पे स्ट्रेन नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। योर क्वेश्चन इज़ राइट, इस पे भी स्ट्रेन आ रहा है, बट हम ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, इट्स नॉट अ कंसर्न। क्यों? क्योंकि एंजाइम का जो एंजाइम में चेंजेस आते हैं ना, slight changes, that's reversible after the reaction is carried out, it goes back to its original form, ठीक है। लेकिन हमारा सबस्ट्रेट वापस ओरिजिनल फॉर्म में जाता है नहीं, वो तो प्रोडक्ट में बदल जाता है ना। सो हमें ये जो स्ट्रेन है ना, किस ये सबस्ट्रेट के ऊपर वाला स्ट्रेन, वो हमें पढ़ना है, मतलब उसके बारे में जानना है, क्या करता है क्या होता है। which in turn induces a strain on the substrate. The strained substrate is converted products. See, okay. So this
strain on substrate. ये जो स्ट्रेन होता है ना, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है एनर्जी ऑफ द substrate increases. So if you heard some noise, so energy of the substrate increases. Energy increase का मतलब क्या है? You know that if the energy of something of a molecule increases, basically becomes unstable, right? It's more unstable. So energy बढ़ने से क्या होता है? Bonds in the substrate they weaken. And अगर substrate के bonds weak हो रहे तो अच्छा ही है ना, मतलब bonds, all bonds must break for new bonds to form. So in our substrate bonds, energy strain, there is a strain on the substrate, which means more energy of the substrate. Then what does that mean? Bonds already present in the substrate, they weaken and then they break and then a new bonds form. Okay, तो तभी हमारा प्रोडक्ट्स बनता है, वैसे हमारा प्रोडक्ट्स बनता है, right? This theory is a continuation of induced theory. Combination with it is considered to be operative in majority of the enzyme actions. So basically, out of the two theories that we discussed, this Cauchy-Lens induced fit theory, this one is the more accepted one. Okay, this one is the more accepted one. And cofactors next lecture. Okay. So thank you. If you find this video helpful in any way, please like, subscribe, share, and all those things. Thank you. Bye bye.